वेलकम वेलकम अगेन टू दिस यूट्यूब चैनल। आज हमारे साथ है मिस्टर प्रवीण सुराना, चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस, as well as his newfound passion for astrology, where he has read more than 7,000 kundalis, as he claims. So let's start with a simple question. You're telling me that the person who used to audit balance sheets now reads birth charts to help people find their dream jobs. So how did a number cruncher become a star grazer? मतलब बैलेंस शीट से First of all, D1 D9 तक कैसा आपका जर्नी पहुंचा ये? to start with, I would say that this is a very good question. Uh, I would begin with as I started as a chartered accountant. Okay, but becoming a chartered accountant, it was like that when I was giving my final exams. It was on from the second attempt itself, continuous, say around up to three attempts. I was not able to give the exams. Okay, just because of I was hospitalized, and at that time it was like malaria जो होता है, it was very much on the top side. Okay, so that has actually me मैं पीछे रहा उसके लिए, ठीक है. But at that time when I was preparing for my the attempt in which I was cleared my CA final, uh, me and my parents went to a very renowned astrologer in Badabjar itself. He said that this attempt you will be clear. Okay, so that has boosted me a lot. Okay, so at that time I was not very much sure about what astrology is all about and how it works and what will be the end results of that. But obviously, it has given me a boost. I started with a very positive mode. Okay, and it has happened actually in the same manner, and I got clear my CA final exam. Okay, so after this, this has approached me to learn astrology and to help others also. Okay, so this is the main thing where which I have worked with. मैंने इसके ऊपर ही बहुत कुछ पढ़ा. 12 लगभग 12 13 15 साल हो गए इसके अंदर में. और मैंने काफी जन को हेल्प किया. एज यू राइटली सेड दैट आई हैव ऑलरेडी सीन 7,000 कुंडलीज एंड पीपल. मैंने लोगों का बहुत हेल्प किया है. सीए प्रोफेशन में अपने सर्विसेज देते हैं और इसके अंदर में भी हम लोग जो सर्विसेज दे रहे हैं वो भी एक अच्छा बात है. अब रहा बात कि इसके अंदर में जैसे कैसे इसका मेरे ऊपर में इफेक्ट आया. क्योंकि अगर एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, इफ योर 8th हाउस 10th हाउस एंड ऑन लग्ना, it is impacted with 8th house and 10th house, or if Lagna is also sitting as 8th house, no? So it has given an added advantage that you can learn occult science. So yes, being an astrologer, scrutinizing the returns, scrutinizing the assessment part, scrutinizing the day-to-day affairs, beyond that, scrutinizing the birth chart is also a very good prospects for a chartered accountant also. हम लोग के जैसे मेरी बच्ची है, वो हमें कभी बोलती है मैं डॉक्टर बनूंगी, कभी बोली इंजीनियर बनूंगी। क्लास 2 में ही है, उसको पता भी नहीं है, बड़ी वाली भी नहीं डिसाइड कर पाती है। क्या चार्ट्स हमें देख के एनालाइज कर सकते हैं कि कौन सा पर्सन किस प्रोफेशन के लिए सूटेड है? कैन दैट Absolutely, absolutely. प्रिडिक्शन कैन बी डन? बिकॉज हाँ, कुंडली जो अपने अगर किसी का बर्थ चार्ट देखते हैं और अगर प्रोफेशन की तरफ देखते हैं या बिजनेस की तरफ देखते हैं, देन वी आर लुकिंग एट 10th हाउस. ओके, सो 10th हाउस अगर आपके स्ट्रॉन्ग प्लैनेट्स अगर वहां पे बैठे हैं तो आपका प्रोफेशन बहुत अच्छा होगा, आपका बिजनेस भी अच्छा होगा. अब उस 10th हाउस में जैसे जैसे प्लैनेट की प्लेसमेंट होती है, बेस्ड ऑन दैट वी प्रिडिक्ट दैट व्हाट करियर or what profession or yeah, what business will be suitable for him or her. So it is very true that 10th house is reflecting the entire thing and we can read it out very easily. ओके, तो अगर एक नॉन एस्ट्रोलॉजर के वर्जन से आप मेरे को बताइए कि किसी के चार्ट में उसके करियर का गोल्डन पीरियड आप कैसे एनालाइज कर सकते हो? मतलब क्या सपोर्ट करता है, किसको वो ओवरकम करता है, मतलब व्हाट आर द ट्रेंड्स? ट्रेंड्स एक्चुअली कोई भी हॉरोस्कोप के अंदर में अगर आप देख रहे हो,
हॉरोस्कोप के अंदर में अगर केंद्र में या त्रिकोण में अगर बेनिफिक प्लैनेट्स बैठे रहते हैं, जैसे बेनिफिक प्लैनेट्स का हो गया जुपिटर, आपका वीनस है, मून है, मरकरी है, ये अगर वहां पे बैठे, डेट मीन्स व्हाट कि आपका चार्ट बहुत अच्छा है। ठीक है। और एजुकेशन के हिसाब से अगर अपने देखते हैं तो फिफ्थ हाउस, सेवेंथ हाउस एंड नाइन्थ हाउस। ठीक है। अच्छा। फोर्थ हाउस को भी हम लोग देखते हैं, फोर्थ, फिफ्थ, सेवंथ एंड नाइन्थ। हायर एजुकेशन के लिए नाइन्थ देखते हैं। अगर फिफ्थ का अगर नाइन्थ के साथ में अगर कनेक्शन होता है, विल डेफिनेटली से दैट दिस चाइल्ड विल ग्रो एंड विल एजुकेट, मतलब एजुकेशन इनकी अच्छी रहेगी। अच्छा। हम्म। ओके, दैट्स इंटरेस्टिंग। सो मतलब खाली 10th हाउस नहीं है, फिफ्थ, सेवेंथ, फोर्थ, अलॉन्ग विद 10th, ये जनरली सारा देखना पड़ता है। जनरली फिफ्थ का अगर नाइन्थ के साथ में अगर कनेक्शन बैठ रहा है, दैट मीन्स व्हाट, आपकी हायर एजुकेशन तो पक्की होगी। बट इफ योर फिफ्थ हाउस इज अफ्लिक्टेड बाय मेलेफिक प्लैनेट्स, हम्म। उस केस में आपका क्या है, एजुकेशन या तो रुक जाता है या फिर एजुकेशन को आगे बढ़ाने में आपके ऑब्स्टेकल्स बहुत आते हैं और आप वहीं पे ही उसको स्टॉप दे देते हैं, आप अपना गिव अप कर देते हैं। बट अगर उस केस में अगर राइट एस्ट्रोलॉजर से अगर आपकी अगर संपर्क होता है, दैट मीन्स व्हाट, ही विल गाइड यू अ लॉट एंड इन सच सिनारियो यू विल गिव योर से अराउंड 100 नहीं 200% अगर देते हैं तो उस ऑब्स्टेकल को भी पार करके। अब मैं आपको बताता हूँ, मैंने ऐसी काफी कुंडलियां देखी है जो आफ्टर मैरिज और उसके भी 7 साल 8 साल के बाद में दे स्टार्टेड अगेन फॉर गिविंग सीए फाइनल एग्जाम्स, और उनके बाद में वो उनका क्लियर हुआ है। हाँ। हाँ हाँ। आप भी कई जन से आपका भी संपर्क होगा जो कि लेट जाके उनका होता है, क्योंकि उस समय में ऐसे ऑब्स्टेकल्स आ गए कि वो और फर्दर उसको एक्सप्लोर नहीं कर पा रहे। करेक्ट। हम्म। आपने आज तक का सबसे वियर्डेस्ट किसी के करियर चेंज में ऐसा प्रेडिक्ट किया हो कि भाई तुम्हारे अब ये होने वाला है, एंड ही वुड बी हम्म। लाइक हो ही नहीं सकता, एंड फिर भी वो हो गया, ऐसा क्या हुआ होगा? वियर्डेस्ट करियर ऐसे चेंज दैट यू हैव प्रेडिक्टेड। ऐसे ऐसे बहुत सारे केसेस हैं। बट वन थिंग, चूंकि आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, मैं भी चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, आई विल टेक एन एग्जांपल ऑफ द चार्टर्ड अकाउंटेंट इटसेल्फ। आई वाज स्टेइंग एट हावड़ा। ठीक है। वहां पे एक जन की मैंने कुंडली देखी। ठीक है। तो एट दैट टाइम ही वाज परसुइंग चार्टर्ड अकाउंटेंट कोर्स। बट मैंने उसको कहा कि तुम सीए तो कर लोगे, बट यू विल नेवर वर्क एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, और हाँ। आपका जो वर्क प्रोफेशन होगा वो सीए रिलेटेड नहीं होगा। और वही हुआ, सीए क्लियर किया। क्लियर करने के बाद उसने अपने फादर के बिजनेस को ज्वाइन किया, और वो अभी एज अ क्लॉथ मर्चेंट अभी काम कर रहा वाह, है। गजब। अच्छा, एक बात बताइए, सपोज आई एम नेचुरली गुड विथ मनी, कि पैसा हम्म। आना है, टिकना है, मैं जनरली अगर सब में अच्छा हूं, तो क्या मेरे चार्ट में दिखेगा ये चीज? एंड एज कम्पेयर टू एब्सोल्युटली। दैट कि चार्ट में पैसा आ तो जा रहा है, टिक नहीं रहा है या आ ही नहीं रहा, तो ये चार्ट में कैसे दिखता है? इसको अगर हम लोग फेज वाइज देखते हैं, किसी भी कुंडली में, अगर आपको अपना वेल्थ देखना हो या अपनी इनकम को देखना हो, तो वी आर लुकिंग एट सेकेंड हाउस एंड 11th हाउस। और वहां पर अगर बेनिफिक प्लैनेट बैठे हैं, जैसे जुपिटर बैठे हैं, वीनस बैठे हैं। ठीक है। वीनस लग्जरी देता है, वीनस आपको वेल्थ देता है। ठीक है। ये दोनों प्लैनेट अगर वहां पे अगर प्लेस्ड है, दैट मीन्स व्हाट, यू विल बी गेटिंग वेल्थ और यू विल बी अर्निंग अ लॉट इन योर लाइफ। बट एक एस्ट्रोलॉजी में एक दो लाइन है जिसमें पूरी इंटायर एस्ट्रोलॉजी को समझा जा सकता है, वो ये है कि कोई भी चीज, योग कहते हैं कि ये घटित होगा, और दशा बोलती है ये कब घटना होगा, मतलब दशा बताती है कब होगा। तो आपके अगर फेवरेबल महादशा अगर चल रही है वीनस की, जुपिटर की, और वो आपके सेकंड और 11th में बैठे हैं, तो आपका वेल्थ होगा और आप अर्निंग भी करेंगे। अब रहा बात कि पैसे आ रहे हैं लेकिन टिक नहीं रहे, सेम लॉजिक, जैसे आपका एजुकेशन मेलेफिक प्लैनेट का एक्सपेक्ट के कारण वो आप आगे एक्सप्लोर नहीं कर पा रहे, इसमें भी वही है। अगर मेलेफिक प्लैनेट का अगर सेवेंथ, सॉरी सेकेंथ एंड 11th में अगर एस्पेक्ट्स होते हैं, और उनकी मतलब मेलेफिक प्लैनेट की दशा चल रही है, इन दैट केस आप अर्न कर भी रहे हो, तो उसको क्या है, आप उसको आगे नहीं बढ़ा पा रहे हो, मतलब उसको वेल्थ को इकट्ठा नहीं कर पा रहे। हम्म।
क्या चार्ट्स ये बता सकते हैं कि मुझे खुद का बॉस खुद होना चाहिए या किसी और के लिए जॉब करना चाहिए? दिस इज द पिक्यूलरिटी ऑफ बर्थ चार्ट। ठीक है ना। अब जैसे कि कई काफी करियर काउंसलिंग होती है, जहाँ पे कई जन बहुत अच्छे अच्छे अपना बताते हैं और उसका इंटरेस्ट जान के उनको बताते हैं कि तुम ये करो वो करो। बट कई बार होता है ना कि आपको चाहते कुछ और है और हो कुछ और जाता है। वैसे ही चार्ट बताता है कि आप बिजनेस कर सकोगे कि नहीं कर सकोगे। देखिए अपने इनकम टैक्स में भी इनकम अंडर द हेड बिजनेस और प्रोफेशन है। आप बिजनेस में कमा रहे हो या प्रोफेशन से कमा रहे हो। सिक्स सिक्स हाउस या 10th हाउस। ठीक है। आपके 10th हाउस में अगर बिजनेस रिलेटेड प्लैनेट्स वहां बैठे हैं तो आप बिजनेस करोगे। अदरवाइज सिक्स्थ में आपका अगर सैटर्न बैठा है या सिक्स्थ का लॉर्ड अगर आपको 10th में बैठा है, दैट मीन्स इट इज वेरी मच क्लियर दैट आप सर्विस में ही अपनी लाइफ को अच्छा देख पा रहे हो। ओके, और गुड प्लैनेट्स कौन से होते हैं? गुड प्लैनेट वही जैसे जुपिटर, वीनस, मून, मरकरी। और मेलेफिक हो गए आपके सैटर्न, राहु, केतु एंड सन। हम्म। तो जैसे कई बार होता है ना, एक ऐसा ऐसा फेज आता है लाइफ में कि कुछ ही नहीं हो रहा है, मतलब जो चीज में हाथ लगा रहे हैं मिट्टी हो जा रहा है, आई एम फीलिंग स्टक। प्रमोशन नहीं हो रहा है फॉर एग्जांपल जॉब में, या बिजनेस कर रहे हैं कुछ हो ही नहीं रहा है। तो क्या उसका भी एक कॉस्मिक एक्सप्लेनेशन है? ये जैसे ही आपने एक्सप्लेन करना स्टार्ट किया ना, आपके चेहरे में एक डिटैचमेंट का एक भाव आ गया। ठीक है। एंड दैट कम्स फ्रॉम केतु इटसेल्फ। ठीक है। आपकी या तो केतु की महादशा चल रही है या फिर केतु आपके वेल्थ के घर पे या प्रोफेशन के घर पे अपना एस्पेक्ट डाल रहे हैं। ठीक है। किसी प्रोफेशन के अंदर में या वेल्थ के घर में या एजुकेशन के घर में वन एंड मोर देन वन अगर मेलिफिक प्लैनेट का अगर एस्पेक्ट हो जाता है तो ये स्थिति आनी स्वाभाविक हो जाती है। इट इज वेरी कॉमन कि आपका काम नहीं चल रहा है या काम अगर हो भी रहा है तो पैसे बरकत नहीं कर रहे हैं। मतलब आप जहां पे भी पैसे डाल रहे हो वो पैसे वहां पे वैनिश हो जा रहे हैं। ठीक है। मतलब कहने का मतलब लाइफ का जो गोल है वो जो आपने सेट किया है उस गोल तक जाने के लिए आपको दिख रही है कि बहुत लंबी सड़क है। एंड इन दिस लाइफ यू विल नेवर कम टू क्रॉस दैट जो अच्छा, एंड मार्क है। हम्म। ये और ये चीज सैटर्न जो है ये क्या हर किसी की लाइफ में क्वार्टर लाइफ रहेगा ही? मतलब एक जो सैटर्न रिटर्न का जो कॉन्सेप्ट होता है। सैटर्न सैटर्न आई वुड से इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल प्लैनेट। ओके। सैटर्न का मतलब सैटर्न जो प्लैनेट है वो इटसेल्फ रिवील करता है कि आप किसके साथ में कितना न्याय कर रहे हैं। बिकॉज ये न्याय के देवता है। एंड इसमें वेरी मच क्लियर है कि आप अगर अपने बिजनेस में अपने प्रोफेशन में अगर क्लियर हो। ठीक है। और आप अपने क्लाइंट को अच्छी सर्विसेज दे रहे हो तो सैटर्न आपको कभी खराब नहीं कर सकता। इवन इफ सैटर्न इज प्लेस्ड इन वेरी जो मतलब शत्रु राशि में बैठा हो या फिर नीच का हो, बट वो सैटर्न इतना आपको खराब नहीं करेगा। लेकिन इट इज द इम्प्लीकेशन ऑफ द प्लेसमेंट ऑफ सैटर्न दैट यू विल डू रॉन्गफुल एक्ट्स जस्ट बिकॉज सैटर्न इज सिटिंग एट रॉन्ग रॉन्ग हाउस। मतलब ऐसा नहीं है कि आप कुछ गंदा कर रहे हैं। इट इज द प्लेसमेंट ऑफ द सैटर्न इन रॉन्ग प्लेस। इट इज एक्चुअली मतलब ऐसे ही सिचुएशन क्रिएट हो रही है कि आपको वो गलत काम आपके हाथ से हो जा रहा है, आप रोक भी नहीं पा रहे करियर मूव में मर्क्यूरी का क्या रोल है? मतलब अगर मैं कुछ बिग बैंग कुछ करियर में चेंज करना चाहता हैं। हूँ। Mercury is actually associated with the intellect of a person, business, finance। ठीक है। बुध, मरकरी जो प्लैनेट है वो अगर 10th हाउस में बैठा है और वो अपने ही घर में बैठा है या एग्जॉल्टेड एग्जॉल्टेड इन द सेंस उच्च का प्लैनेट, अगर वो वर्गो में बैठा है, कन्या राशि में, तो वो एग्जॉल्टेड हो जाता है। और वो अगर 10th हाउस में बैठा है दैट मीन्स व्हाट कि उसके अंदर में बहुत मैसिव पावर है और बिजनेस करने की स्ट्रेटेजी, डिफरेंट बिजनेस को कैसे रन करना है उसकी कैपेबिलिटी आपके अंदर में इनबिल्ट आ जाती है। और उसको अगर सपोर्ट कर देता है, सूर्य अगर सपोर्ट कर देता है और जुपिटर उसको सपोर्ट कर देता है, दैट मीन्स व्हाट आपको कभी भी बिजनेस में चैलेंजेस नहीं आएंगे। हाँ ये है कि आप बिजनेस में एक अलग लेवल सेट करोगे जिसको आपके जो आने वाले जो आपके अंदर में जो भी आदमी हैं वो उनको पार करने की कोशिश करेंगे या उनके लिए आप एक रोल मॉडल बन जाओगे। कुछ उपाय बताइए, लेट्स से आई एम स्टक विद अ टॉक्सिक बॉस।
हम्म। या कुछ भला हो ही नहीं रहा है उसके अंडर, क्या उसका हम्म। कुछ उपाय हो सकता है? या सिमिलरली कलीग ऐसे मिल गए जो टॉक्सिक हैं, जो भला होने ही नहीं दे रहे? चलिए, स्टार्स में लिखा है क्या है, पहला बात तो ये स्टार्स का कुछ इन्फ्लुएंस होता है क्या? मतलब स्टार्स ही बॉस का क्वालिटी भी स्टार्स डिटरमाइन करता है क्या, या कलीग्स? और अगर ऐसा है, अब इस भंवर में कोई फंस गया तो उसका उपाय क्या है? कोई भी अगर प्लानिट, कोई भी अगर आप चार्ट अगर दे रहे हैं, हॉरोस्कोप देख रहे हैं, तो सिक्स्थ हाउस इज रिलेटेड टू रोग, ऋण एंड रिपु। रोग हो गया है आपका जो छोटी छोटी बीमारियां होगी। ऋण हो गया आपका जो भी आप लोन ले रहे हैं। रिपू हो गया आपके दुश्मन। ठीक है। तो सिक्स हाउस में अगर ऐसे प्लैनेट्स बैठे हैं जो कि आपके शत्रु को बढ़ावा देते हैं, क्योंकि सिक्स हाउस सर्विस का भी है। ठीक है। सिक्स्थ एंड सेवेंथ जो है वो अगर एफ्लिक्टेड है, हाईली एफ्लिक्टेड है, तो इसमें जैसे शुक्र अगर नीच का अगर छठे घर में बैठा है, तो ये डेस्टाइंड है कि आपके जो फ्रेंड सर्कल में लोग रहेंगे वो मतलब गिरी हुई हरकत करेंगे, या फिर वो सिगरेट स्मोकिंग करेंगे, अल्कोहलिक होंगे, और आपको भी उस तरफ मोड़ेंगे। एक तो ये हो गया। दूसरा, आपके साथ में जो भी जैसे बॉस अगर आपके साथ में है, वो आपको अच्छा मिले या नहीं मिले, वो भी सिक्स हाउस से ही रिलेटेड मान सकते हैं उसको। क्योंकि अगर आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, आप सर्विस प्रोवाइड करने में अगर आपको ऑब्स्टेकल्स आ रही, दैट मीन्स व्हाट, कहीं ना कहीं आपके सर्विस एरिया में आपके प्रॉब्लम्स वहां पे क्रिएट हो रही है। और बट ऑब्वियस है कि टेंथ और सिक्स का दोनों का कनेक्शन उसके अंदर में होगा, तभी जाके आप आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि आपको बॉस भी कैसे मिलेंगे, आप अच्छे अच्छे मिले या खराब मिलेंगे। एक जैसे किसी ने बहुत अच्छा कहा है कि किसी ने बुरा कहा मुझे, किसी ने अच्छा कहा मुझे। किसी हम्म। ने बुरा कहा मुझे, किसी ने अच्छा कहा मुझे, जिसको जैसे जरूरत थी वैसा समझा मुझे। फैंटास्टिक। हम्म। सपोज कोई बहुत क्रिएटिव है बट ही स्टक इन अ बोरिंग जॉब लाइक एन अकाउंटिंग, तो उसको क्या करना चाहिए? See, you himself have explained that it's a boring. बोरिंग कब आता है? जैसे मेरे लिए एस्ट्रोलॉजी प्रोफेशन है, पैशन है, सॉरी, इट्स नॉट प्रोफेशन, पैशन है। तो मेरे पास में अगर कोई भी ऐसा बंदा है जो 10, साढ़े 10, 11, 12, साढ़े 12 बजे तक रात को भी कॉल करता है ना, तो मेरे को उठ के वो काम करने में ज्यादा मतलब प्रॉब्लम नहीं होती। मैं एफर्ट ऐसा मतलब मेरे को महसूस नहीं हो रहा है कि ये मेरे ऊपर में बोझ आ गया। ठीक है, क्योंकि ये मेरा पैशन है। बट ऐसा ही काम अगर किसी काम मतलब किसी क्लाइंट के लिए आप 12, साढ़े 12 बजे अगर उठ के कर रहे हो, तो आप खुद को जस्टिफाई नहीं कर पा रहे हो। तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन योर पैशन एंड योर मतलब इंटरेस्ट। और वर्क में, दोनों में डिफरेंस है सर। काम में आपका अगर इंटरेस्ट है और आपका पैशन है वो करने का, तो आप कभी भी कुछ भी करो, उसमें आपको बोर महसूस नहीं होना चाहिए। हम्म। क्या किसी के चार्ट में ऐसा लिखा रहता है कि ये आदमी फेमस होगा? एकदम। हर स्टार्स की कुंडली में, मोस्ट ऑफ द स्टार्स की कुंडली में आप देखेंगे वीनस एंड मून, उनकी कंजंक्शन हमेशा आपको, हमेशा मतलब ऑलमोस्ट 70 to 75% आप देख रहे हैं, वीनस एंड मून का कॉम्बिनेशन उनके पास में मिलेगा ही मिलेगा। वीनस और मून क्या है, बहुत ज्यादा आपको एक्सप्लोर कर देते हैं। अच्छा, आध्यात्मिक फील्ड में अगर मान लीजिए आप सामाजिक फील्ड में बहुत ज्यादा आपका अगर नाम है, दैट मीन्स, और जुपिटर आपका बहुत अच्छा है, क्योंकि मान सम्मान इज्जत जो है वो जुपिटर बढ़ाता है। लेकिन रातों रात स्टार बनाना, चमका देना, वो वीनस एंड मून करता है। हम्म। टेल अस लाइक कि आपसे किसी ने कंसल्टेशन किया एस्ट्रो शमन ऐप में, आपका जो इन हाउस हम्म। ऐप आपने बनाया है, एंड हम्म। उसने आपकी एडवाइस को मेटिकुलसली फॉलो किया विदाउट डाइवर्जिंग हम्म। नेम्स और समथिंग, बट वो सिचुएशन के बारे में बताइए कि एक सेशन ने किसी की जिंदगी बदल दी। हम्म। ऐसे बहुत हैं। जैसे अभी 2 दिन पहले एक जन का मेरे पास फोन आया, ही इज फ्रॉम चेन्नई। ठीक है। तो और मेरा सबसे बड़ा एडवांटेज ये है, मतलब मैं समझता हूँ ये एडवांटेज है क्या, कि अगर आप किसी को कोई भी आप रेमेडी बता रहे हो, ठीक है, और वो रेमेडी आप जो प्लैनेट्स है उनको अलाइन करने के लिए बता रहे हो, जिसके लिए आपको खुद को ही कुछ करना है,
मान लीजिए आप अगर मंत्र जाप कर रहे हैं या फिर कुछ ऐसी एक्टिविटीज कर रहे हैं जिससे कि प्लैनेट्स जो भी अलाइंड होते हैं, तो उससे क्या आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलता है। वैसे ही मैंने उनको कुछ कुछ बताया प्लैनेट्स की अलाइनमेंट करने के लिए, कुछ टेक्निक्स बताए, कुछ मंत्र उपचार करने के लिए बोले फॉर 40 days। So you believe me or not, it is say around 35 days only। ठीक है, उसके बाद उनका एक ऐसा रिप्लाई आता है कि मेरा तो बहुत अच्छा हो गया, मेरे को अब 2 जन का और दिखाना है। मतलब कहने का मतलब दैट दैट लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन विच दे हैव शोन इट टू मी। और एक एक कंसर्न हो जाता है ना कि आप किसी को बता रहे हो और उनका अगर भला हो जाए, तो अपने आप को भी आप बहुत अच्छा महसूस करते हैं कि मैंने किसी के लिए अच्छा किया। क्योंकि देखिए, सोसाइटी से आपने बहुत कुछ लिया है, अब वक्त है कि आप सोसाइटी को खुद भी कुछ दीजिए। शुरुआत तो मेरी ऐसी हुई थी सर, टिल आई हैव सीन 6,000 कुंडलीज ना, मैंने किसी से कुछ लिया नहीं। मैंने फिर किसी ने कहा कि अगर कुछ ले नहीं रहे, एनर्जी एक्सचेंज होती है, तो मैं उनको सीधा बोल देता था कि आप जो भी आपको बन पड़े, आप गाय को फीड कराइए, काव को, तो मेरी गाय सेवा हो सकती है। लेकिन उसके बाद मेरे को लगा कि जो आदमी उत्सुक है देने के लिए, ठीक है, उसके लिए मैंने क्या एक वेबसाइट बनाई astrosummon.com करके। और उसमें अगर लोग जुड़कर अगर मेरे को दे रहे हैं, तो वो मैंने एकदम साइड रख रखा है। और उससे अगर किसी के एजुकेशन में काम आ सकते, किसी के अगर फाइनेंशियल ट्रबल है उसके लिए काम आ सके, तो उसके लिए मैं उस चीज को रिजर्व करके रखा हूँ। और वहां पे यूटिलाइज करने की एक मेरी भावना है कि सोसाइटी से मैंने बहुत कुछ लिया, अब सोसाइटी को देने का वक्त आ गया। आपकी एडवाइस सुन के ऐसा होता है कि किसी ने ब्रेक लगा ली और वो एक्सीडेंट से बच गया, इन टर्म्स ऑफ फ्रॉम अ करियर पर्सपेक्टिव, हम्म। किसी ने आपकी एडवाइस फॉलो की और एक करियर में मेजर डिजास्टर होने वाला था, वो बच गया, ऐसा कुछ होता है? सर, अगर एस्ट्रोलॉजी की अगर बात करें, तो मैंने जो बताया ना कि योग कहते हैं कि ये घटित होगा, और ये कब घटित होगा ये दशाएं बताती हैं। ठीक है, तो दशा जब आ रही है तो वो चीज एक्टिवेट हो जाती है क्या, जहां पे आपका ये चीज होना तय है। लेकिन उसकी रेमेडी अगर आप करते हैं, तो उनका जो जिसको बोल सकते हैं ना पावर, आने का जो पावर है वो कम हो जाता है। मतलब इट विल अफेक्ट यू, बट इन डॉट इन नॉट इन अ वे एग्जाम्पल? कि आपको वो बहुत ज्यादा परेशान करे, वैसे नहीं हो। तो ऐसे नंबर ऑफ केसेस है, जिसके अंदर एक केस तो मैं अपने पर बोल रहा हूँ। जैसे एक मेरी, खैर मैं अभी डिस्कस ज्यादा नहीं बता, लेकिन ऐसी एक अभी दशा चल रही जहां पे मेरा एक्सीडेंट होने की संभावना बहुत ज्यादा थी। जैसे ही वो फेज आया, विद इन 5 to 7 days वैसा कुछ हुआ। बट लेकिन सिर्फ आंख में यहाँ पे, मतलब और कुछ हुआ नहीं, यहाँ पे कट होके रह गया, क्योंकि सर मतलब एक सर्जरी होने की लिखी, कट होना लिखा था और एक्सीडेंट होना लिखा था। तो वो एक बहुत कम वे में उसको रुक गया। मतलब वो बड़ा बड़ा कुछ होने वाला था, एक छोटे में टल गया। सिंपल लॉजिक यही है कि क्योंकि इसकी रेमेडी हम लोग ने पहले कर रखी थी। तो ऐसे ही अगर कोई राइट टाइम में अपने चार्ट को अगर दिखाए, तो क्या है कि ये सब से रेमेडी से बचा जा सकता है, ओके। मतलब सॉरी, इस सब ऑब्स्टेकल से बचा जा सकता है। किसी को अपना वर्क लाइफ को इम्प्रूव करना है, कुछ हम्म। सिंपल टिप्स दीजिए कि क्या कर सकता है, इरिस्पेक्टिव ऑफ उसका क्या चार्ट है, अभी क्या चल रहा है। जनरली ऐसा क्या कर्म होता है जो आपका थोड़ा भला कर सकता है? छोटे छोटे टिप्स हैं सर, और मैं आपके इस पॉडकास्ट के जरिए सबको बताना चाहता हूँ, और ये सबके करने लायक है, बहुत अच्छा टिप है। आप अगर कुछ भी काम कर रहे हो ना, विदाउट सैटर्न आप काम नहीं कर सकते हो। सैटर्न ही वो ऐसा प्लैनेट है जिससे आप कार्यरत हो या आप काम कर सकते हो। आपका सैटर्न कहीं पे भी प्लेस्ड हो, हर सैटरडे आप अपना अगर कमोड जहां पे आप टॉयलेट करते हैं, उसको हर सैटरडे सैटरडे अगर आप धोते हैं, तो आपके लिए अच्छा है। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा आपको वॉकिंग करनी है, से अराउंड ½ 1 घंटा अगर आप डेली वॉकिंग करते हैं, तो अच्छा है। तीसरा एक सबसे बेस्ट उपाय ये है कि आप लिफ्ट का यूज से अराउंड अभी से, जब जब आप मेरा ये जब भी आपका ये वीडियो अगर कोई देख रहा है, उसी समय से नेक्स्ट 40 days तक एटलीस्ट लिफ्ट का यूज नहीं करके सीढ़ी का यूज करें। ठीक है, 40 days तक। तो क्या है, इससे केतु बहुत जल्दी अलाइंड होते हैं। ठीक है, डेली गणेश जी के दर्शन करने हैं। ठीक है, और वॉकिंग का मैंने बताया ही, वॉकिंग करने से भी आपके केतु का अलाइनमेंट होता है। केतु एक्चुअल में क्या है, केतु जितना पैसा आपको दे सकता है, उतना पैसा
किसी और प्लानिट की देने की मतलब आपने उस दिन नहीं है। बताया था, बट क्योंकि केतु प्लैनेट नहीं है, वो नॉर्थ और साउथ ऑफ मून है। राहु एंड केतु, हाँ, मून के दो नोड्स हैं, ठीक है। बट इन इन टर्मिनोलॉजी वेयर वी आर डीलिंग इन एस्ट्रोलॉजी ना, तो हम लोग केतु प्लैनेट के हिसाब से उनको डिस्कस कर रहे हैं। बट अगर एस्ट्रोनॉमी में देखे जाए तो वो तो दो नोड्स हैं मून के, ठीक है ना। तो कहने का मतलब है केतु को ठीक करना हो, राहु को ठीक करने के लिए आप अगर डेली 10 मिनट्स to 15 मिनट्स अगर आप मेडिटेशन करते हैं, ठीक है, तो भी बहुत अच्छा रहता है। मैं जैन हूं सर, ठीक है। और एक लास्ट मैं रेमेडी बता रहा हूं जो कि राहु केतु सैटर्न के लिए, जैसे बोला जाए तो वो ब्रह्मास्त्र है, ठीक है। वो ये है कि ओम रिंग नमो लोए सब सावनम, रोज 108 बार इसका अगर मंत्र का जाप किया जाए तो राहु केतु सैटर्न रिलेटेड जो भी आपकी प्रॉब्लम, काल सर्प योग है, राहु लगन में बैठा हुआ है, राहु सप्तम में बैठा है, राहु अष्टम में बैठा है और बहुत ज्यादा पीड़ा दे रहा है, और केतु मोक्ष त्रिकोण में नहीं बैठ के तीसरे घर में पंचम में बैठा है, तो आपको बहुत प्रॉब्लम दे रहा है। तो इससे ओम रिंग नमो लोहे सब सामनम का मंत्र का जाप करने से इसमें बहुत अच्छा आपको इसका रेमेडी मिल सकेगी। इसका एक मैं बता सकता हूँ कि ओम रिंग नमो लोहे सब सावनम, लोहे सब सावनम का मतलब है, लोहे मतलब मैं नमन करता हूँ, सब सावनम मतलब ऐसे सभी व्यक्ति को जो जिन्होंने ऐसा वस्त्र धारण किया है जो मोक्ष की कामना करने के लिए उन्होंने ये चोला जो पहना है। मतलब कहने का मतलब है मोक्ष जाने वाले जितने भी साधु संत हैं, जो आने वाले हैं, उनको मैं नमस्कार करता हूं। तो ये जस्ट एक नमन है उन सबको। और केतु, अगर आप एस्ट्रोलॉजी की कई किताबें देखते हैं ना, तो केतु को बोला जाता है केतु संत है। इसका एक रीजन भी है कि आज अगर बड़े से बड़ा व्यक्ति, मान लीजिए अगर अडानी जी हैं या मुकेश अंबानी जी भी है, अगर किसी भी संत के पास जाकर अगर वो बो डाउन होकर अपने दोनों हाथों को उनको उनके चरण को स्पर्श करते हैं, वो जो पोजीशन है उस पोजीशन में वो अपने आप को जीरो करते हैं, तभी वो बो डाउन हो सकते हैं। कोई आदमी जिसके अहंकार होगा ना पैसे का, वो हमेशा ऐसे तना हुआ रहेगा, वो कभी झुकेगा नहीं, और झुकेगा वही जो अपने आप को जीरो समझता है। तो केतु के पास इतना पावर है कि वो किसी भी आदमी को वो नतमस्तक करके वो अपने आप के अपने पास में उसको जीरो करके भी लेके आ सकता है। तो केतु हम्म। के अंदर में बहुत बड़ी, और ओम रिंग नमो लोये सब सावनन से राहु केतु सैटर्न का बहुत अच्छा एक उपयोग हो सकता है। तो एक वन, ठीक है, जो भी व्यूअर है, अगर किसी को लग रहा हो, बेसिकली अगर नुकसान करने का क्षमता ज्यादा, ये तीन प्लैनेट ज्यादा नेगेटिव हो सकते हैं, राहु केतु एंड शनि। हम्म जनरली हम्म आपका हम्म गुरु या बुध उतना नुकसान नहीं करता है। हम्म। सो आपको ये तीन प्लैनेट से जनरली इनको शांत रखना होगा, तो आपका भला होगा। सर बेनिफिक बेनिफिक प्लानेट अगर 6 8 त्रिक घर जो बोले जाते हैं ना, 6 8 12 में अगर बृहस्पति वहां बैठते हैं, स्पेशली 8वें घर में अगर बृहस्पति बैठ रहे हैं या बृहस्पति 12वें घर में बैठ रहे हैं, छठे घर में बैठ रहे हैं, तो बृहस्पति का पॉजिटिव जो है ना, वो पॉजिटिवनेस छिन जाता है उनसे, मतलब वो पॉजिटिव नहीं कर पाते हैं। ट्रिक घर में 6 8 12 में भी अगर बेनिफिक प्लानेट भी बैठे हैं ना, तो वो उतना पॉजिटिव आपको नहीं कर सकते वहां पे, एज पर पराशरी हुरा शास्त्र जो मैं स्टडी किया हूं मैंने, पराशरी के हिसाब मैं फाइनल क्वेश्चन, आपने एस्ट्रोलॉजी सीखा कैसे? कोई स्ट्रक्चर्ड कोर्स होता है कोई इंस्टीट्यूट का, कुछ बुक्स होती हैं? बिकॉज काफी आजकल देखता हूँ लोग चाह रहे हैं, मैं खुद सीखना चाहता हूँ, मैंने आपको बताया ही था। से। मैंने इसका डिग्री कोर्स किया है, अभी मैं जस्ट कंप्लीट करने वाला हूँ विशारद। लेकिन इसकी भी एक कहानी है सर, लास्ट 14 15 ईयर से मैं बहुत पढ़ रहा था, लेकिन ऐसा ही कुछ एक इंसिडेंस हुआ जहां पे मैं भी वहां पे गया, तो 2 3 एस्ट्रोलॉजर वहां पे थे जो कि एक डिग्री कोर्स किए हुए थे। तो वहां पे देखा गया कि उनकी जिसको बोलते हैं ना कि लोग उनको बहुत ज्यादा माने कि भाई ये तो डिग्री कोर्स किए हुए हैं। तब मेरे को दिमाग में आया कि नहीं, हमको भी डिग्री कोर्स करना चाहिए। तो आफ्टर मैं जो कंप्लीट किया हूँ, उससे समझ में आया कि एक होता है ना, कॉम्पिटेंसी बढ़ जाती है कि भाई आप कॉम्पिटेंट इनफ हो, आप कहीं पे भी अगर खड़े हो रहे हो, क्योंकि डिग्री आपके पास में है, तो आप उस चीज का बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन और उसको एक्सप्लोर अच्छे से कर पाओगे। परफेक्ट। थैंक यू प्रवीण जी। मैंने आपको थैंक्स अ बहुत लॉट सारे आपका। क्वेश्चन पूछे, बट बीन वेरी थैंक्स अ पेशेंट। लॉट आपका भी, आपके माध्यम से लोगों का हो
सकता है कि जो भी उनकी भ्रांतियां हैं वो दूर हो सकेगी। और अगर मान लीजिए उनको अगर अपनी या अपने बच्चों के बारे में अगर कुछ भी एक्सप्लेनेशन उनको अगर सुननी हो या करने हो, तो astrosummon.com पे वो आके हमसे संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू। जय थैंक हिंद। यू। ओके। थैंक यू।